Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you have joined us in this broadcast. हमें खुशी है कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। It is our hope and desire that God is using these broadcasts to strengthen you and empower you. हमारी आशा और प्रार्थना है कि परमेश्वर इन प्रसारणों का प्रयोग आपको बल और शक्ति देने के लिए करे। And if you have been listening to this series of messages on the fruit of the Spirit, we pray that you will begin to grow the fruit of the Spirit. और यदि आप आत्मा के फल पर इस संदेश श्रृंखला को सुनते आ रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप में आत्मा का फल विकसित होना प्रारंभ हो। We learned in the last broadcast that in a world where selfishness is considered a virtue, पिछले प्रसारण में हमने सीखा कि ये संसार जहां स्वार्थ को एक गुण समझा जाता है, God's word tells us that those who belong to Jesus are daily growing the fruit of kindness and acting upon it. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसे में भी वो जो यीशु मसीह के हैं, वो हर दिन आत्मा के फल को विकसित करते हुए इसे व्यवहार में लाते हैं। In this broadcast, we will begin to look at another fruit of the Spirit that is central to the character of God. इस प्रसारण में हम आत्मा के एक और फल को देखना प्रारंभ करेंगे जो परमेश्वर के चरित्र का केंद्र है। That part of the fruit is goodness. फल का वो भाग है भलाई। Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। Early in the 19th century, King Frederick William III of Prussia found himself in great trouble. 19वीं सदी के शुरू में प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने खुद को एक बड़ी समस्या में पाया। He and his country were involved in a very expensive war. वो और उसका देश एक बहुत ही महंगा युद्ध लड़ रहा था। And at the same time, he was endeavoring to transform his nation into a great nation. और ठीक इसी वक्त वो अपने राष्ट्र को एक महान राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा था। Meanwhile, he ran out of money in the accomplishing of his plan. इसी दौरान अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा समाप्त हो गया। As a result of running out of money, he contemplated two things. पैसा समाप्त होने के परिणाम स्वरूप उसने दो बातों पर विचार किया। First, पहली बात, he could disappoint his people and curtail his country's progress. वो अपने लोगों को निराश कर देश की तरक्की को कम कर सकता था। Second, दूसरी बात, he could capitulate to his enemies. वो अपने शत्रुओं के सामने हथियार डाल सकता था। Neither path was acceptable to him. इनमें से कोई भी मार्ग उसे स्वीकार्य नहीं था। On the one hand, he could not disappoint his people, and on the other, he thought that capitulating to the enemy was unthinkable. एक ओर वो अपने लोगों को निराश नहीं कर सकता था और दूसरी ओर उसके विचार में शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करना तो सोच से भी परे की बात थी। So, after a great deal of deliberation, he approached the women of Prussia. तो बहुत सोच विचार के बाद वो प्रुसिया की औरतों के पास पहुंचा। The king asked them if they would sacrifice their gold and silver jewelry to be melted down and be made into money for the good of their country. राजा ने देश की औरतों से पूछा यदि वे अपने सोने चांदी के गहने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं ताकि इनसे वो देश के भले के लिए कुछ धन एकत्र कर सकें। He told them that for each gold and silver ornament he would give them one of bronze or iron as a token of his gratitude to their sacrifice. उसने उनसे कहा कि उनके हर एक सोने या चांदी के गहने के बदले में वो उन्हें उनके बलिदान के लिए अपने आभार के चिन्ह के रूप में एक एक कांसे या लोहे का पदक देगा। Each of his decorations would bear the following inscription. उसके द्वारा दिए गए हर पदक पर ये शब्द अंकित होंगे। I gave gold for iron, 1813. मैंने लोहे के बदले सोना दिया, 1813। The response was incredibly overwhelming. प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त थी। What was even more overwhelming was that those women prized these gifts from the king more highly than their former possessions. इससे भी अधिक अभिभूत करने वाली बात यह थी कि उन औरतों ने राजा की तरफ से मिले इन कांस्य और लोहे के उपहारों को अपने पहले के सोने और चांदी के गहनों से कहीं अधिक बहुमूल्य जाना। The reason was clear. कारण स्पष्ट था। The bronze and iron decorations were the mark of their sacrifice for their king. कांस्य और लोहे के ये पदक अपने राजा के लिए उनके बलिदान का चिन्ह थे। As a matter of fact, it is a matter of history. तथ्य के रूप में ये इतिहास का विषय है। It became unfashionable for women of Prussia to wear jewelry. प्रुसिया की स्त्रियों के लिए गहना पहनना अलोकप्रिय बन गया। Thus, the order of the Iron Cross was established. इसी कारण लोहे की क्रूस का एक वर्ग बन गया। All members of that order
wore no ornaments of gold or silver, उस वर्ग का कोई भी सदस्य सोने या चांदी का आभूषण नहीं पहनता था, but instead they wore a cross of iron for all to see. बल्कि इसके बजाय सबको दिखाने के लिए वो लोहे की क्रूस पहनते थे। What happened here? यहाँ क्या हुआ? Generosity and sacrifice for the king became the way of life. राजा के प्रति उदारता और बलिदान वहाँ जीने का तरीका बन गया। Generosity and sacrifice for the king became the mark of true citizenship. राजा के प्रति उदारता और बलिदान वहाँ सच्ची नागरिकता का चिन्ह बन गया। Goodness and self-giving became the honor badge for all Prussians. भलाई और आत्म बलिदान सभी पुरुषों के लिए सम्मान चिन्ह बन गया। In many ways, that's exactly what the Apostle Paul meant in Galatians 5:22 and 23. प्रेरित पौलुस ने गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22 और 23 पद में जो कहा, कई प्रकार से उसका असल में यही अर्थ था। When he included generosity and goodness as fruit of the Spirit. जब उसने उदारता और भलाई को आत्मा के फल में शामिल किया। Let us review that scripture again. आइए फिर से वचन के इस भाग पर गौर करें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। The Greek word agathos, which is translated goodness in the Bible, यूनानी शब्द एगाथोस बाइबल में जिसका अनुवाद भलाई शब्द के रूप में किया गया है, literally means giving to others as an outflow from a character that is filled with goodness. इसका यथार्थ अर्थ है ऐसे चरित्र में से दूसरों को उमड़ते हुए देना जो भलाई से भरा है। Imagine a multi-layer fountain. एक बहुसतही चश्मे की कल्पना कीजिए। When you turn it on, it begins the top floor. जब आप इसमें पानी चालू करें तो ये सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू होता है, Then the second layer gets filled. Then the third layer. फिर दूसरी सतह भर जाती है और फिर तीसरी सतह, Then it reaches the boundaries of the fountain. फिर पानी चश्मे के किनारों तक पहुंच जाता है Finally, everyone who comes near the fountain is going to get wet. और अंत में जो भी चश्मे के पास आता है वो गीला हो ही जाता है। It is a character that is so overflowing with goodness that it cannot help but fill everybody who comes near it. ये चरित्र है जो भलाई से ऊपर तक इतना भरा हुआ है कि जो भी इसके पास आता है ये उसको भी परिपूर्ण कर देता है और ये इसमें कुछ नहीं कर सकता। That's what goodness means. भलाई का यही अर्थ है। In reality, there are all kinds of motives for giving, including giving of ourselves and giving of our substance. वास्तव में खुद को दे देने और अपनी धन संपत्ति देने सहित देने के हर प्रकार के उद्देश्य हैं। I have learned never to judge people's motives. मैंने सीखा है कि लोगों के उद्देश्यों को कभी नहीं जांचना चाहिए। That is not my business, that's God's business. वो मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। I only judge action. मैं केवल हरकतों को जांचता हूँ। Some people give because it makes them feel good. कुछ लोग इसलिए देते हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा लगता है। Some people give because it is a habit. कुछ लोग इसलिए देते हैं क्योंकि ये आदत है। Some people give out of obedience. कुछ लोग आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के घर में पैसा देते हैं। And yet there are others who give out of selfish motive. और फिर ऐसे भी हैं जो स्वार्थी उद्देश्यों के कारण देते हैं। You may ask what it means to give out of selfish motive. आप शायद पूछें कि स्वार्थी उद्देश्यों से परमेश्वर के घर में देने का क्या अर्थ है? Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Some years ago in the city of Miami in the United States, कुछ वर्ष पहले की बात है, अमेरिका के मियामी शहर में the main street was lined up with beautiful royal palm trees. मुख्य सड़क के किनारे किनारे बहुत खूबसूरत शाही खजूर के पेड़ों की एक कतार थी। But one night, vandals cut down 6 of these magnificent trees. परंतु एक रात किसी ने इन खूबसूरत पेड़ों में से 6 पेड़ काट डाले The city did not have enough money to replace them. और शहर में इतना पैसा नहीं था कि इनके स्थान पर ऐसे ही पेड़ लाकर लगाए जाते। However, very quickly, a generous donor was found and he offered to replace the lost trees. खैर शीघ्र ही एक उदार दानी व्यक्ति मिल गया और उसने इन पेड़ों को बदलने का प्रस्ताव रखा। Let me tell you about this generous donor. मैं इस उदार दानी सज्जन के बारे में आपको बताता हूँ। The former trees have been about 15 feet tall or 5 meters. पुराने पेड़ 15 फुट या 5 मीटर लंबे थे। They formed a perfect foreground for a big airline company billboard. उनका अग्रभाग एक बड़ी हवाई जहाज कंपनी के विज्ञापन बोर्ड के लिए एक उत्तम स्थान था। The new trees that were generously given वो नए पेड़ जो बड़ी उदारता के साथ दिए गए थे were 35 feet tall वो 35 फुट लंबे थे and completely obliterated
and hid that airline's billboard from sight. और इन पेड़ों की वजह से उस हवाई जहाज कंपनी का वो विज्ञापन बोर्ड बिल्कुल नष्ट हो गया और नजर से छिप गया। Guess who the generous donor was? अंदाजा लगाइए वो उदार दानी कौन था? A competing airline company. उस जहाज कंपनी के मुकाबले की दूसरी कंपनी। I have to tell you what generosity is not before I can tell you what it is. इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उदारता क्या है, पहले ये बताना आवश्यक है कि उदारता क्या नहीं है। This is not the kind of generosity that flows out of the goodness that the Apostle Paul is talking about as fruit of the Spirit. ये उस प्रकार की उदारता नहीं है जो भलाई के कारण उमड़ती है, जिसे प्रेरित पौलुस आत्मा के फल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। Please listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने जो मैं आपको बताने वाला हूं। The opposite of goodness is evil. भलाई का विपरीत है बुराई। There is no in between. इसमें बीच की कोई बात नहीं है। There is either goodness or there is evil. या तो भलाई होगी या बुराई होगी। The two are diametrically opposed. ये दोनों विपरीत रूप में विरोधी हैं। But not all evil wants to look like evil. परंतु सारी बुराई बुराई की तरह नहीं दिखना चाहती। Evil often does not like to appear as evil, so it works hard at developing a good face. बुराई अक्सर खुद को बुराई के रूप में पेश नहीं करना चाहती, इसलिए ये एक अच्छा चेहरा विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। Evil works very hard to put on a goodness face. बुराई भलाई का चेहरा ओढ़ने के लिए कड़ा परिश्रम करती है। The Bible calls that hypocrisy and deception. बाइबल इसे पाखंड और छल पुकारती है। Let us look at some examples. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। Someone commits a crime and then he says, well, it's not my fault. कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और फिर कहता है ये मेरी गलती नहीं है। Or he might say, well, I did this for a good cause. या वो कहता है मैंने ये अपराध एक अच्छे कारण से किया है। A man deserts his family, but he put on a good face and say, we are not getting along. एक व्यक्ति अपने परिवार को त्याग देता है, परंतु वो एक अच्छा चेहरा पेश करते हुए कहता है हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। Someone drinks to excess and tries to put a good face on it. कोई व्यक्ति हद से अधिक शराब पीता है और इस पर एक भला चेहरा पेश करने की कोशिश करता है। And he would say, I just have too many problems in life and I need to forget my problems. और वो कहता है मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं उन्हें भूलना चाहता हूं। So he puts on a good face on the destruction of his life, to say nothing of the misery that he puts his loved ones through. तो उस कष्ट के बारे में कोई बात ना करने के लिए जो वो अपने प्रियजनों पर लाता है, वो अपने जीवन की बर्बादी पर एक अच्छा चेहरा ओढ़ता है। Or take a person who is blessed of the Lord, but instead of being faithful with God's blessings, या एक ऐसे व्यक्ति को लीजिए जिसे प्रभु ने आशीष दी है, परंतु परमेश्वर की आशीषों के प्रति विश्वास योग्य रहने के बजाय and overflow with generosity, और उदारता से भरने के बजाय and returns to God what belongs to God, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को लौटाने के बजाय he tries to put on a good face and say, we have lots of expenses. वो एक अच्छा चेहरा ओढ़ने का प्रयत्न करते हुए कहता है हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। Or like someone who told me recently, या जैसे एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले ही मुझसे कहा, I am doing so well investing my money, I am not going to give anything to God. मैं अपने पैसे को किसी काम में लगाकर बहुत लाभ प्राप्त कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दूंगा। Because I'm going to keep on investing it and make lots of money, then give God a big lump sum. क्योंकि मैं इसी प्रकार से पैसा लगाकर और पैसा कमाऊंगा और फिर एक साथ परमेश्वर को ज्यादा पैसा दूंगा। I told him a story about a prominent Christian businessman who was the founder of a heavy machinery company. मैंने उसे एक प्रतिष्ठित मसीही व्यवसायी की कहानी बताई जो एक बड़ी मशीनें बनाने वाली कंपनी का संस्थापक था। This man was known as a great steward of money. अब ये व्यक्ति पैसे के एक बहुत अच्छे प्रबंधक के रूप में जाना जाता था। But one year he decided not to give as he normally does. परंतु उसने निर्णय किया कि जैसे वो आमतौर पर परमेश्वर के घर में पैसा देता है, एक साल तक वो नहीं देगा। Because he made more money than he's ever made before. क्योंकि उसने पहले से ज्यादा पैसा कमाया। This is how he rationalized it. फिर इस प्रकार से उसने इस बात को सही ठहराने का प्रयत्न किया। I will invest God's money this year, double it, and give twice as much next year. उसने कहा इस साल मैं परमेश्वर के पैसे को कहीं लगाऊंगा, इससे दोगुना करूंगा और अगले साल परमेश्वर को इससे दुगना दूंगा।
but he lost it all. परंतु वो सब खो बैठा। Later on, he would testify that when he was praying one day, he heard the Lord speaking to him. बाद में उसने गवाही दी कि जब एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने प्रभु को उससे ये बात करते सुना। He said, "Next time, you give me my money and I'll do my own investment." उसने कहा, अगली बार तू मेरा पैसा मुझे देना और मैं अपना पैसा खुद लगाऊंगा। Evil has always worked hard on looking good and presenting the face and the mask of goodness. बुराई ने हमेशा खुद को अच्छा दिखाने और भलाई का चेहरा और मुखौटा पहनकर सामने आने के लिए कड़ा परिश्रम किया है। I believe we have not yet seen all of the ramifications and the consequences of when evil that is spun and masquerade as good will be like. जब बुराई जो घुमा फिराकर और भेष बदलकर अच्छाई के रूप में प्रकट होती है तो मेरा विश्वास है कि हमने अभी तक इसके सभी भाग और परिणाम नहीं देखे हैं कि ये कैसे होंगे। I believe we have not yet seen all of the ramifications and the consequences of when evil that is spun and masquerade as good will be like. मेरा विश्वास है कि बुराई जब भलाई के रूप में भेष बदलकर खुद को पेश करती है तो हमने अभी देखा नहीं है कि इसके भाग और परिणाम कैसे होंगे। When we call evil good and call good evil, it is only a matter of time until we will reap the consequences. जब हम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं तो बस कुछ ही समय की बात है जब आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। The word of God is telling us that the generosity which is the outflow of the goodness of character is the true fruit of the Spirit. परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि वो उदारता जो कि चरित्र की अच्छाई में से बहती है वो आत्मा का सच्चा फल है। Be careful of the false goodness. झूठी भलाई से सावधान रहिए। Be careful of the inferior goodness. घटिया भलाई से सावधान रहिए। Be careful of the fake goodness which is nothing but evil with a good face on it. उस झूठी भलाई से सावधान रहिए जो सिर्फ एक अच्छा चेहरा लगाई हुई बुराई के अलावा और कुछ नहीं है। Remember that agathos refers to the pure, sincere goodness. याद रखिए कि यूनानी शब्द एगाथोस का मतलब है शुद्ध और सच्ची भलाई। Agathos refer to the goodness that springs forth in God-like action toward others. एगाथोस उस भलाई से संबंधित है जो दूसरों के प्रति परमेश्वर समान व्यवहार पैदा करती है। Agathos is characterized with honesty, truthfulness, and blazing integrity. एगाथोस का चरित्र चित्रण ईमानदारी, सच्चाई और रोशन ईमानदारी के साथ होता है। Agathos is generosity that flows out of goodness and pours itself out to everyone around it. एगाथोस वो उदारता है जो भलाई में से बहती है और खुद को उन सब पर उंडेलती है जो इसके आसपास रहते हैं। Agathos does not just mean the giving of oneself. एगाथोस का अर्थ सिर्फ दान देना या खुद को देना नहीं है। It has a deeper meaning than that. इसका इससे भी गहरा अर्थ है। I wish I could personally comprehend it totally, let alone explain it to you. इसे आपको समझाने की बात छोड़िए, काश मैं खुद पूर्ण रूप से समझ पाता। Agathos is the attitude that you have toward those around you. एगाथोस वो व्यवहार है जो आप अपने आसपास के लोगों के प्रति करते हैं। Agathos is having an outstretched hand, not a clenched fist. एगाथोस का अर्थ है खुली बाहें, ना कि कसा हुआ मुक्का। Agathos is a desire to help and comfort and encourage and motivate. एगाथोस दूसरों की मदद करने, तसल्ली देने, प्रोत्साहित और प्रेरित करने की एक इच्छा है। Agathos is a virtue that cannot be contained, that cannot be bottled up, that cannot be hidden from view. एगाथोस एक गुण है जो रोक कर नहीं रखा जा सकता, बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, जो दृष्टि से छिपाया नहीं जा सकता। It is reflected in your finances. ये आपकी आर्थिक स्थिति में दिखाई देता है। It is reflected in your thought. ये आपकी सोच में दिखाई देता है। It is reflected in your speech. ये आपकी वाणी में दिखाई देता है। It is reflected in your emotional response. ये आपकी भावात्मक प्रतिक्रिया में दिखाई देता है। Agathos means goodness and generosity. एगाथोस का अर्थ है भलाई और उदारता। Until we meet again, I'm going to continue to talk to you about goodness. हमारे दोबारा मिलने पर मैं आपसे भलाई के बारे में बात करना जारी रखूंगा। I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।